Yes, very good afternoon, everyone. All the student of Gurukul, all the student of Summer Internship Program MUHS. Okay, I welcome you all. Okay, so गुरुकुलचे जे स्टुडंट आहेत ऋतिक एकदा ग्रुपवरती टाकशील की लेक्चर सुरू झालंय म्हणून. आणि जे स्टुडंट आपल्या कोर्सचे आहेत त्यांनी त्यांच्या ग्रुपवरती टाका की कोर्स लेक्चर सुरू झालेला आहे म्हणून, सो दॅट दे विल अंडरस्टँड दे नीड टू जॉइन इट. ओके, विदिन नेक्स्ट 3 minutes वी विल स्टार्ट. ओके, ग्रुपवरती एकदा कळवा फक्त की वी हॅव स्टार्टेड. ऑल द SIP स्टुडंट हॅव जॉईन्ड. ओके, वेलकम ऑल ऑफ देम for this guest session, for this guest lecture. This is the alumni group as a mother institute. Whatever we want to do, we are trying to do for all the students, for the welfare of the student, and I hope everyone is getting it. Okay, so alumni Gurukul alumni group वरतीही टाका आणि कोर्स alumni group वरतीही टाका की लेक्चर सुरू झालेलं आहे म्हणून. Okay, today we have a very special guest with us, with the Madhav Gaikwad. Definitely, we are going to introduce him first, then we will start. But before that, I will tell that uh, everyone should attend this lecture because this is so different. What we can say, so different topic. So this need, we need to see this topic, we need to understand this topic, and we need to go through this topic. Okay, so in next 2 minutes we will start with the session. So please inform your colleagues regarding joining it. Yes, okay, so let's start without much of a waiting. We will start with this today's session. Today's session is a different topic and a different person than the regular one. You see me always, आप मुझे बहुत बार देखते हो एलुमिनाई के सेशन पे. आज हमारे ही गुरुकुल के एक स्टूडेंट, लेकिन अभी जिनका नाम बहुत अच्छा हो चुका है, ही इज डूइंग ए रियली गुड एंड हार्ड वर्क. एक टॉपिक को लेके डेडिकेटेड वर्क करना, ये कितना डिफिकल्ट होता है, और उसके बाद जो मिलता है वो कितना स्व आनंद देने वाला होता है. ये जर्नी आप आज सुनने वाले हो. बाहर ओके, वो जर्नी आप सुनेंगे, उनकी उनसे इंस्पिरेशन लेंगे, और बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है अलग अलग. एंड आई एम श्योर बाय द माधव विल शो यू यूनिक पिक्चर्स ऑल्सो. उन्होंने अपने फार्म्स में क्या क्या लगाया है, अभी क्या क्या कर रहे हैं, और आगे के प्लान क्या है. और आई एम रियली प्राउड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गुरुकुल दैट ही इज अ स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल and he's consistently following and in touch with the Gurukul. And Vaidya Madhav, I want to inform you that we have in front of us MUHS SIP students who are joined from various backgrounds and through various colleges. Okay, so they are very much excited to listen to you. And what I can say, this is a very different project which is appreciated by ourselves towards the university.
एंड वो लोग अभी सामने हैं, तो उनके लिए स्पेशली आपको बुलाया गया है। इसी के साथ गुरुकुल के कुछ विद्यार्थी भी है, तो उनमें से ही गुरुकुल की एक विद्यार्थिनी, एसआईपी की एक विद्यार्थिनी वैद्य अनिया सिंह आपका परिचय करके देगी। देन वी विल स्टार्ट विद द सेशन। ओके, यस, मैं आई रिक्वेस्ट अनिया टू स्टार्ट विद हर। आई विल जस्ट अनम्यूट यू अनिया, जस्ट अ मिनट। ओके, प्लीज स्टार्ट। Thank you, sir. Uh, Good evening, everyone. I am Aniya Singh, and on behalf of Prachin Samhita Gurukul, I welcome all the respected alumni. Today's guest lecture will be delivered by our special alumni who is known to start a different trend in Ayurveda farming. It is my great pleasure to introduce our respected guest, Vaidya Madhav Gaikwad, sir. Vaidya Madhav Gaikwad is an accomplished Ayurvedic practitioner with expertise in organic herbal cultivation, Ayurvedic medicine manufacturing, and herbal research. He completed his BMS from GAC Dharashiv and is pursuing his MD in Rasashastra and Bhaishajya Kalpana from Dr. D.Y. Patil Ayurvedic College and Research Center, Pune. Along with his medical and research work, he is also well known for Bheshajya Farm, his herbal farming development, and work as a consultant in organic herbal cultivation and plant science. His passion for nature is beautifully reflected through his work in herbal and natural photography, where Sir captures the complete life cycle of medicinal plants for research, education, and awareness. His dedication towards Ayurveda, sustainable herbal farming, and natural healing is truly an inspiration. I welcome you, sir, by the entire team of Prachin Samhita Gurukul, and it will be privilege for all of us to listen to your valuable thoughts and guidance. Yes, thank you so much Ania, let's start now. Okay, thank you so much to प्राचीन संहिता गुरुकुल एंड मेरे जो गुरु है वैद्य हरीश पाटनकर सर कि जिन्होंने मुझे आज ये सेशन के लिए इनवाइट किया। एक्चुअली मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ, पर इतने जल्दी मुझे लगा नहीं था कि इतने जल्दी एक एज अ गेस्ट स्पीकर मुझे आने का मौका मिलेगा, या जो कुछ अभी तक हमने विश्व वैश्विक फार्म में या जो काम हमने किया है, तो उस जो काम वो काम आपके आगे ये शो करने का एक इतने जल्दी ये मिलेगा तो हमें लगा नहीं था। पर अभी ये जो है कृषि आयुर्वेद ये हमारी जर्नी है अभी तक की, तो ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और डायरेक्टली अभी पीपीटी की स्टार्ट कर देंगे। Yes, and also you can continue in Marathi. Lots of students are Marathi only. यस। Mother, your mic is mute. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, now you are audible. यस। कृषि आयुर्वेद जो है ये दो अलग अलग टर्म है, इसमें कृषि और आयुर्वेद। तो हमारा फार्मिंग का बैकग्राउंड होने के वजह से हमारा कृषि में हम 10 तक गांव में ही रहे हैं, तो हमें फार्मिंग की एक बेसिक आइडिया थी कि फार्मिंग कैसे करनी है का
सीजन के अकॉर्डिंगली वर्क कैसे रहते हैं, या प्लांटेशन हमारे ज़्यादातर ट्रेडिशनल फार्मिंग में वेजिटेबल्स या कुछ जिंजर हम ज़्यादातर लेते थे, जो कि अभी आयुर्वेदा में भी जो शुंठ है उसकी, तो शुंठी का आयुर्वेदा में भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर एक्सपोर्ट होने वाली मेडिसिन शुंठी है अभी। तो हमने ये दोनों मर्ज किया, कृषि और आयुर्वेदा। हम आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि ये दोनों भाई है, हम कृषि वैद्य वैद्य गायकवाड़ ब्रदर्स नाम से हमारा ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे चैनल है, अकाउंट है। तो ये जो मेरे साइड में है वो वैद्य मनोज गायकवाड़, ये छोटे भाई है मेरे, और हमारा दोनों का भी बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ है। मेरा जो है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद से, और भाई का जीएससी नांदेड़ से हुआ है। तो जो जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी 2014 में, तो स्टार्टिंग में जब एडमिशन लिया था 2014 में, तो हमारे कॉलेज के जो डीन थे वैद्य प्रकाश खापर्डे सर, जिनका ये था कि वैद्य खुद के मेडिसिन खुद बनाने चाहिए, और प्रैक्टिस के अलावा जो मेडिसिन प्रिपरेशन या एज अ खुद की फार्मेसी करके एक खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश कर सकते थे। तो ये उस्मानाबाद एक तो ऐसे ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, एक विलेज के जैसे ही है, पर वहाँ पे सर होने के कारण ये सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से ही एक आइडिया है कि इसमें करियर कर सकते हैं आगे। तो हमारा ऐसे था कि सेकंड ईयर जब कुछ एनुअल फंक्शन रहता था, तो सर का ये रहता था कि ग्रुप वाइज 2-3 स्टूडेंट के ग्रुप करते थे, और उनको हैंडमेड मेडिसिन, खुद की मेडिसिन बना के वो स्टॉल में बेचना। एग्जीबिशन था तो वहाँ पे ये सेल करना। तो वहाँ पे मैंने सीखा कि मेडिसिन जैसे च्यवनप्राश, कंठ सुधारकोटी, शतावरी कल्प, अलग अलग तेल जो है, महानारायण तेल, धन्वंतर तेल, और कुछ बाकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी वहाँ पे बनाने का मौका मिला। और जो कुछ दूसरे ग्रुप रहते थे, कुछ सीनियर रहते थे पीजी के, रस के, तो उनसे भी मैंने सेकंड ईयर से ही स्टार्ट किया कि वो क्या बनाते हैं। तो हर एक ग्रुप में जाके देखना कि वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, प्रोसीजर प्रिपरेशन के वक्त क्या क्या तकलीफ आती है, या प्रॉब्लम्स क्या आता है। तो ये सेकंड ईयर से ही पता चला। तो एक वहाँ पे मुझे एक लगा कि हम जो मेडिसिन मंगवा रहे हैं वो पुणे या मुंबई और कुछ दिल्ली साइड से आते थे। तो ज़्यादातर मेडिसिन, उस्मानाबाद एक विलेज है, तो वहाँ आजू बाजू में कॉलेज के जो हॉस्टल का प्रीमाइसेस था या बाजू में, तो वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन से मेडिसिन ऑलरेडी नेचुरली ग्रो हुए थे, जैसे कि लघु पंचमूल। वहाँ पे कृष्णपर्णी छोड़ के सभी लघु पंचमूल अवेलेबल थे। तो हमने वो परचेस किए मार्केट से, और जिसका रेट 200 रुपए किलो के आसपास था। तो मुझे लगा कि ये एक तो नेचुरली कलेक्ट कर सकते हैं, या अपने खुद के फार्म में जो मेडिसिन नेचुरली इजीली मिलती नहीं, तो ये फार्म में लगा सकते हैं। ये सेकंड ईयर में ही मेरे जहन में था कि ये इस पे कुछ काम कर सकते हैं आगे। और एक तो कृषि का ही भी बैकग्राउंड था, और साथ में भी मेरा फोटोग्राफी में ज़्यादातर इंटरेस्ट था। सेकंड ईयर से एक फाइनल ईयर तक मैंने 30,000 से ज़्यादा अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग स्टेजेस में फोटोज लिए थे, कलेक्शन किए थे। जब हमारे वक्त हर्बेरियम का जो प्लांट्स थे उसके स्पेसिमेन, जो ड्राइड लीफ या फ्रूट से या उसके सीड से, ये लगाने होते थे। पर बाद में हमारे बैच के बाद ये आया कि उसके फोटोज लगाने हैं। तो मैंने वो 3-4 साल में इतने सारे फोटोज निकाले थे कि महाराष्ट्र के या महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत सारे कॉलेज में मैंने निकाली हुए हर के फोटो, मेडिसिन के फोटोज वो सेंड किए। या तो उसी कारण थोड़ा सा जो मतलब स्टूडेंट यू है सेड उससे 30,000 फोटो निकाले आपने? 30,000, यस। माय गॉड, सो हाँ, अप्रिशिएटेड। और उसीलिए वो दौरान मुझे लगभग 1 लाख किलोमीटर में बाइक पे मेरी सीबी यूनिकॉर्न थी। तो सीबी यूनिकॉर्न पे लगभग 1 साल 1 लाख किलोमीटर में घूमा वो बाइक पे। ओ माय गॉड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ये पता नहीं था मुझे भी। और फार्मिंग का बैकग्राउंड था, क्योंकि 10वीं तक हम गांव में ही पढ़े दोनों। 10वीं तक स्कूल हमारी गांव में ही थी। तो क्या क्या करना है यहाँ, पढ़ाई के साथ साथ
फार्म में क्या-क्या करना चाहिए या मेहनत क्या रहती है, ये पता हमें बचपन से ही था। और दोनों भी पढ़ाई में हम स्मार्ट थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ईज़िली लग गए नंबर। और इसमें फैमिली का एक सपोर्ट रहा, क्योंकि सबसे पहले जो इसमें चैलेंज है कि ये फैमिली मेंबर को कन्विंस करना कि हर्बल फार्मिंग करनी है, जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग जो होती है, वो छोड़ के हर्बल फार्मिंग की ओर शिफ्ट होना। क्योंकि तब शतावरी का स्कैम हुआ था, जैसे कि कुछ एजेंसीज थी जिन्होंने कि सैपलिंग फार्मर को दिए, और बाद में जो बाय बैक करना था उनको रूट शतावरी के, तो वो रूट्स लिए ही नहीं। तो वैसे ही सफ़ेद मुसळी का हुआ था कि एजेंट ने जो कंपनीज थे, उन्होंने उसके सैपलिंग दिए, उसके लिए जो एक्सपर्टाइज लगती है या फर्टिलाइजर लगता है, ये सब सप्लाई किया, और बाद में वो परचेस ही नहीं किया। तो एक 2018-20 के आसपास हुआ था कि फार्मिंग ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं, जैसे एलोवेरा के भी हुआ था कि 1 रुपये 2 रुपये किलो से वो फार्मर से प्रोक्योर करते थे, और ये फार्मर के लिए उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं था जैसे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो ये पहला ये है कि फैमिली का सपोर्ट। तो फैमिली का सपोर्ट होने की वजह से, क्योंकि हम बाहर भी रहे, तो जो कुछ हम हर्बल फार्मिंग करते थे, इसका मेंटेनेंस या बाकी देखभाल जो रहती थी, ये पूरे हमारी फैमिली के मेंबर, मेरे दादी जी, पिताजी और आई, ये सभी देखते थे। ये मेरे दादाजी है। और दादाजी का जो था कि पहले से कि खेती के साथ साथ सीखना भी चाहिए, इसीलिए हम गांव में पहले दीदी और बाद में हम तीनों ही भाई का, दीदी का बीएचएमएस हुआ है और दोनों भाई का बीएमएस हुआ है। उनका पहले से ही था कि गांव में पले बड़े, फिर भी डॉक्टर या कुछ तो पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ में खेती पर भी ध्यान देना है। तो उनका जो सपना था, वो हम अभी उस पे चल रहे हैं। ये दादी जी है। जब हमने पहली हेयर ऑयल की बैच बनाई थी, तो ये बर्तन काला ना हो, इसीलिए उन्होंने वो मिट्टी के साथ, मिट्टी राख रहती है, तो वो ऐश जो रहती है चूल्हे की, तो उससे वो लेपन कर रही थी कि जो कि वो बर्तन काला ना हो। थरथरणारा हात तिचा खंबीरपणाचा आधार देतो. मऊ मऊ पत्राला तिच्या मायेची ओघ, निव्वळ निखळ प्रेम, आजी माझी रखुमाईचं सूर. और ये पिताजी है कि जिन्होंने जब गार्डन में समर के सीजन में वाटर की कमी थी, पानी की कमी थी और सूख रहा था, तब जो पाइप नीचे कटा था, तो उन्होंने नीचे जाके वो पाइप खुद से जोड़ा था। तो इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, जो आप सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो देखते हैं वीडियो फार्म के, पर उसके पीछे जो टीम है, जो मेहनत लगती है, तो ये आपको एक हम ये स्लाइड के थ्रू दिखा रहे हैं कि जो दिखता है उतना भी आसान नहीं है कि हर्बल फार्मिंग करना। और जिसके पास थोड़ा बैकअप है, खुद की फार्म है, तो ये इजीली कर सकते हैं। जो कि ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं, तो ये धीरे धीरे हर्बल फार्मिंग की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। और साथ में ही मेरी माता जी और वाइफ, ये भी फार्मिंग में, जब हॉस्पिटल में छुट्टियां रहती है, सैटरडे संडे हम फार्म में आते हैं, तो मैं खुद के हाथों से मेडिसिन बनाते हैं। और ये जो है, हम दोनों भाई, कुछ भी हो, काम नहीं रुकना चाहिए। पूरे बारिश में हम खेत जोते रहे थे, जो कि अदरक की, हम जिंजर की प्लांटेशन के लिए फार्म रेडी कर रहे थे। तो इसी का नाम, जो फार्म का नाम है अभी, विश्व भैषज, यानी पूरे जग की औषधि या औषधि, दूसरा सिनोनिम है कि औषधि। तो इसलिए हमने उसका भी ट्रेडमार्क के लिए डाला है। और विश्व भैषज के हॉस्पिटल, फार्म, विश्व भैषज गुरुकुल, ऐसे अलग अलग इस पे हम काम कर रहे हैं अभी। और ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है कि ये पूरे यूनिटी से और फैमिली का सपोर्ट है। और आज लगभग एक 15 लोगों की टीम है विश्व भैषज कम्युनिटी के लिए। जब 2019 में मेरी इंटर्नशिप खत्म, यानी चालू थी, तभी से मैंने इंटर्नशिप के फर्स्ट डे से ही एक
ये तो पोस्टिंग तो चालू ही थी, पर साथ-साथ में क्या कर सकते हैं, तो शतावरी का प्लांटेशन तभी सैटरडे, संडे या छुट्टी जब रहती थी, तब उस्मानाबाद धाराशिव से औरंगाबाद हमारा जो संभाजी नगर है, यहाँ पे फार्म में आता था। वो सीड्स वहाँ से लेके ये आगे का जो 2020 ये फ़ोटो है, जिसमें अ, हमने शतावरी ट्रे में लगाए थे उसके सीड्स। और बाद में ये हल्दी का फोटो आप देख सकते हो कि मेरी इंटर्नशिप होने के बाद ही जल्दी शादी हुई थी, तब ये हल्दी का फोटो है। उसके बाद आगे का जो फोटो है ये 6 महीने के बाद शतावरी आई थी, वो 2022, यानी 2 साल के अंदर कुछ ऐसे रूट्स निकले थे। लगभग एक सिंगल इस लता को उसके 20 किलो के आसपास शतावरी निकली थी। ऐसे हमने एक स्टार्टिंग में 60 के आसपास 60 पौधे लगाए थे शतावरी के। तो लगभग उससे 2 लाख के आसपास हमें मुनाफा हुआ था, सब कुछ खर्चा जाके। तो स्टार्टिंग की जो बैच बनाई थी वो मेरी वाइफ के लिए, मैडम सोनाली मैम के लिए ही हमने बनाई थी, शतावरी कल्प का। तो ये स्टार्टिंग जो हुई थी ये हम पे ही ट्रायल जो हुई थी, जो मेडिसिन बनाने के बाद। वो बाद में जब इंटर्नशिप होने के बाद पीजी की भी साइड साइड प्रिपरेशन चालू थी, तो तब मैंने डीवाई पाटिल पुणे का जो कॉलेज है वहाँ पे रसशास्त्र के लिए सब्जेक्ट, वो रसशास्त्र सब्जेक्ट में नंबर लिया, क्योंकि द्रव्य कन्फ्यूजन था कि द्रव्य में करना है या रस में करना है। पर द्रव्य से मुझे अच्छा लगा कि रसशास्त्र, क्योंकि रसशास्त्र में वैल्यू एडिशन हो सकता है, क्योंकि द्रव्य का तो वैसे ही पढ़ाई कर सकते हैं, पर रस में थोड़ा वैल्यू एडिशन जो कुछ प्रोडक्ट बनाने वो चाहते ना हुए भी वो पढ़ना पड़ता है, तो उससे ज़्यादा कुछ और सीखने को मिलता है। इसीलिए मैंने रसशास्त्र चूज किया और डीवाई पाटिल में एडमिशन लिया। तभी मैं पुणे में जहाँ वनस्पति दर्शन, अलग अलग वनस्पति दर्शन जो नेक्स्ट तो है अगस्त्य एग्रो है, जो कि वैद्य अरविंद कडू सर है, उन्होंने मुझे फार्मिंग या मेडिसिन कैसे बनाने हैं तो उसके बारे में बहुत गाइडेंस किया। उसके नीचे विवेकानंद पाटिल सर है कि जिनका उजनी कुर्डुवाडी वहाँ पे फार्म है, तो उनका लगभग 5 एकड़ में दशमूल का सर ने प्लांटेशन किया है, और अभी उनके भी लगभग 200 से ज़्यादा अलग अलग हर्ब्स की वो खेती करते हैं, और उनका गार्डन भी है। और बाद में जो मेरे इंस्पिरेशन है वैद्य प्रकाश कापड़े सर, कि जिन्होंने मुझे मेरे यूजी के दरम्यान या पीजी में भी क्या करना है, आगे पीजी में कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं या क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में गाइडेंस किया। विवेक गडद्रुम सर है, जो कि जेई फार्म नर्सरी है उनकी, तो वहाँ से मैंने बहुत सारे सैपलिंग विश्व परिषद फार्म में लाए थे, और उनसे एक सीखने को मिला कि कौन से प्लांट के सीड्स कब कलेक्ट करना है, या नर्सरी उसके सैपलिंग कैसे बनाने हैं और वो सेल कैसे करना है, तो उसका मार्केट के बारे में भी उन्होंने मुझे आइडिया दी। आयुर्वेद फ्रैटर्निटी के छोड़ के ये मेरे कुछ गुरु है कि जिन्होंने, उसमें एक है पद्मश्री राई भाई पोपेरे, जिनको गवर्नमेंट राई भाई पोपेरे जिनका संगमनेर अकोले जो साइड है, वहाँ पे उनका फार्म है, और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पद्मश्री किताब से नवाजा है, क्योंकि उन्होंने जो देसी बीड्स है सीड्स रहते हैं, तो उसका कलेक्शन सेंटर है उनका। तो उनके पास राइस की लगभग 15 से ज़्यादा वैरायटी, ज्वारी की जो है 20 से ज़्यादा वैरायटी, ऐसे अलग अलग ट्रॅडिशनल जो व्हेजिटेबल्स या सिर अलग अलग कडधान्य तृणधान्य जे म्हणतात, तर त्याचे अलग अलग उसके सीड्स कलेक्ट किए, उन्होंने कंजर्व किए हैं। तो उनके पास भी मैंने 2 महीने के आसपास में वहाँ पे रहा था, तो उन्होंने बहुत सारा वहाँ पे सीखने को मिला। बाद में वैद्य समीर जमदग्नि सर, कि मेरे जो गुरु है, गुरुओं के गुरु वैद्य समीर जमदग्नि सर, तो जिनमें पाटनकर सर है, अरविंद कडू सर है, और सूर्यवंशी सर, ये सभी वैद्य समीर जमदग्नि सर के पास ही सीखे हैं। तो इनडायरेक्टली मैं ये जो सर का था कि वैद्य की खुद का खेत होना चाहिए, खुद की फार्मेसी होनी चाहिए और खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो ये हमने एक साथ कैसे ला सकते, इस पे यूजी से ही काम चालू यानी स्टार्ट किया था कि उसमें अमल कैसे लाया जाए। और बाद में हमारे फार्म में वैद्य दिलीप गाडगिल सर ने भी 2 दिन के लिए स्टे किया था। उन्होंने जब थे तो सर ने बहुत सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, कि जो अभी उनकी कैंसर की प्रैक्टिस थी, तो सर
का एक था कि कैंसर का जो कॉज है कि जो अभी केमिकल फर्टिलाइजर या स्प्रे हो रहे हैं इंसेक्टिसाइड, तो उसकी वजह से ज़्यादातर पेशेंट कैंसर के मिल रहे हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ ही उनका ज़्यादातर ये रहा प्रयास कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के और कैसे कर सके। तो सर पुणे से ये फार्म देखने के लिए और गाइडेंस करने के लिए हमें, तो पुणे से यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे। उनकी प्रैक्टिस छोड़ के सब इतनी एज उनका एज छोड़ के आए थे, तो उनसे भी एक सीखने को मिला। वैद्य संतोष सूर्यवंशी सर जिनका कि 100 ग्राम है, तो उनसे भी हम सीखे। नीचे जो फोटो है वो वैद्य हरीश पाटनकर सर जो कि जिनके साथ एक गुरु और एक सर दोस्त की तरह भी सजेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और हम ज़्यादातर जो ट्रिप रहती थी हमारी जो द्रव्य दर्शन की ट्रिप, उसमें ही ज़्यादा मिले। ओपीडी में जितना मिलता है उससे ज़्यादा वहाँ पे मुझे ज़्यादा सीखने को या सर के जो कुछ एक्सपीरियंस था वो मैंने वहाँ से ही ज़्यादातर मुझे सीखने को मिला। बाद में बालाजी तांबे का आपने सुना ही होगा उनका कि उनके वहाँ पे भी मैं 2-3 दिन रहा था, तो उनसे भी सीखने को मिला। पारस गोलेचा सर, आशीष सर और निर्विकार के नीलेश लोंढे सर, उनसे भी हॉस्पिटल कैसे सेट Yes, करना चाहिए Madhav. एनएबीएच के। Yes, just a minute. Harish sir is there. ओके। He also wants to talk. Harish sir, I have unmuted the mic. Can you please continue? ओके ग्रेट. Hmm. हॅलो माधव. हेलो सर. खूप छान वाटलं. येस, खूप छान प्रेझेंटेशन चालू आहे आणि आता जस्ट पेशंट संपले. मी ऐकतच होतो, पण छान तुम्हाला शुभेच्छाही द्याव्यात म्हटलं. ओके, सगळे प्राचीन संहिता गुरुकुलची टीम आहे, सगळे छान लेक्चर ऐकत आहेत आणि सुंदर लेक्चर चालू आहे. प्रेझेंटेशन पण छान केलेलं आहे. ओके, सो कीप इट अप. खूप सर. खूप शुभेच्छा आणि टच मध्ये राहूयात. येस, ओके. थँक्यू सर, थँक्यू. आणि सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी माधव माझा खूप प्रिय आहे, खूप छान आहे. मस्त आहे तो, खूप हुशार आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आता आयुर्वेद क्षेत्रात शेतीतलं काम खूप छान करत आहे. आमच्या 100 ग्रामच्या ट्रिपच्या आणि खूप भारी भन्नाट आठवणी पण आहेत सगळ्या. एकत्र फिरलेलो आहे भरपूर आम्ही. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही एकत्र फिरता त्यावेळी आपोआपच तुमचं एक वेगळं बॉन्डिंग होत असतं. त्यामुळे असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मी सांगेल की आमच्यासोबत वनस्पती दर्शनाला येत चला. म्हणजे आयुर्वेद सगळ्या अँगलने आपल्याला आपोआप शिकायला मिळतो, एक्सप्लोर करायला मिळतो. ओके. येस माधव, प्लीज कंटिन्यू. ओके, थँक्यू सर. तर त्यानंतर वैद्य अनिल बनसोडे सर त्यांच्याकडनंही द्रव्य आयडेंटिफाय कसं करायचं आणि त्याच्याबद्दलचं त्यांचे बरेच द्रव्यदर्शनचे की सिंहगडला होतात. तर तिथे मी तेही अटेंड केले. आणि डॉक्टर निलिमा दारकर, वैद्य निलिमा दारकर, तर त्या आमच्या डी.वाय. पाटीलच्या रसशास्त्राच्या एच.ओ.डी होत्या. तर त्यांनी मला बऱ्याच गोष्टीमध्ये म्हणजे कॉलेजला असतानाही किंवा कॉलेजहून कंप्लीट पी.जी. झाल्याच्या नंतरही बऱ्याच गोष्टीत गाईडन्स केला. आणि मेन म्हणजे सगळ्यात पहिलं की एवढं मी जे फिरलोय ते मॅममुळेच पॉसिबल झालं. कारण प्रेझेंटी मला माझी खूप कमी असायची, कॉलेजला कमी आणि बाहेर जास्त असायचो. पण मग त्यांना माहित होतं की पुढे काहीतरी करणार आहे. आणि मेन वैद्य माझे जे गुरु प्रकाश खापर्डे सर त्यांच्या त्या स्टुडंट असल्यामुळं सरही मॅमला असिस्ट करायचे की याला थोडंसं मॅनेज कर. तर मला ते बऱ्यापैकी म्हणजे सपोर्ट मिळाला. त्यानंतर आम्ही दोघांनी भावांनी डिवाइड करून घेतलं होतं की मी जे असेल ते फार्मिंग रिलेटेड किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग, औषधी निर्माण आणि त्यानंतर त्याच्या मार्केटिंग रिलेटेड जास्तीत जास्त त्यावरती फोकस करेल. आणि जो भाऊ आहे छोटा, तर त्यांनी प्रॅक्टिसवरती जास्त फोकस केला होता. त्यामध्ये मग तो वेगवेगळ्या वैद्यांकडनं म्हणजे नांदेडला असताना तेव्हा वैद्य योगेश मर्लापल्ले, त्यानंतर देशमुख सरांकडे, नंतर आव्हाड सरांकडे, अमृतवाड सर, प्रवीण जोशी सर, राजा रेड्डी आणि पंजाबाई दामणिया सरांकडे शिकला. आणि तिकडे असतानाच गुजरातला असतानाच त्यांनी कुरेशी नर्सरी, जी की भारतातली सगळ्यात मोठी नर्सरी आहे, जी त्याला जेमतेम 4,000 पेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्लांटचे सॅपलिंग मिळतात. तर तिथे त्यांनी 1-2 दिवस तिथे स्पेंड केले. म्हणजे तिथे बऱ्यापैकी शिकायला भेटलं. काही नवीन ज्या स्पेसीज इझिली मिळत नाहीत किंवा नामशेष होत चालल्या, तर त्या आम्ही तिथनं कलेक्ट केल्या होत्या. तर आता हे सगळ्या गोष्टी आपण Madhav, शिकलोय. can you continue in Hindi, please? ओके.
तो ये जो हम सीख के आए थे दोनों भाई, जो एक भाई ने क्लिनिकल पार्ट और एक ने फार्मिंग रिलेटेड या मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट था, तो ये अप्लाई करना है। तो ये कैसे करना है, तो हमने ये फार्म में स्टार्टिंग जो की थी, ये फार्म से की थी कि फार्म में मेडिसिन लगाना है मेरी इंटर्नशिप के साथ साथ ही। तो साइड बाय साइड मेरी पीजी और बाद में मनोज का इंटर्नशिप, ये साथ में होते गए। और मेडिसिन हम जब छुट्टियों में जाते थे तो मेडिसिन बनाते थे, और फार्म में जो कुछ वर्क रहता था वो। और साथ में सोशल मीडिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, यानी कांटेक्ट, वो फोटोज के कारण से मेरे पहले से ही हुए थे। तो स्टूडेंट भी फार्म का ये देखने के लिए आते थे, और वो खुद के बनाए हुए जो मेडिसिन है खुद के पेशेंट के लिए, जो या जो वैद्य प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हम ये मेडिसिन सप्लाई करते थे। तो हर्बल फार्मिंग क्यों करनी है, क्योंकि अभी जो है केमिकल फ्री मेडिसिन चाहिए। नेचुरल जो मेडिसिन है ज़्यादातर प्रेफरेंस उस पर बढ़ रहा है। उसके साथ जो अभी जो ये है एलोपैथिक मेडिसिन, उसके जो साइड इफेक्ट है, तो उस पे अगर काउंटरैक्ट या कम करने हैं तो आयुर्वेदा की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, या हर्बल ओरिजिन के मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसी कारण अभी अगर रॉ मटेरियल अच्छा नहीं रहा तो मेडिसिन भी आगे अच्छे नहीं बन सकते, या ऑर्गेनिकली ग्रो किए होंगे नहीं रहेंगे तो जो अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए होंगे तो उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और अभी एक्सपांड मार्केट भी उसके लिए एक्सपांड हो रहा है। आप देख सकते हो कि सर के भी कितने ज़्यादा बाहर के पेशेंट रहते हैं। तो ग्लोबल भी उसकी डिमांड बढ़ रही है। जैसे आयुर्वेद बढ़ेगा उसके साथ उसके मेडिसिन जो लगेंगे उसका भी मार्केट बढ़ते जाएगा। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के अलावा न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेटिक में भी रॉ मटेरियल की ज़्यादातर नीड है। और इम्यूनिटी बूस्टिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी मेडिसिन रॉ मटेरियल लगता है। और उसका मार्केट साइज धीरे धीरे दिनों दिन बढ़ ही रहा है। और उसका लगभग ग्रोथ रेट जो है वो 11.2% है। और ये मैंने इंक्लूड किया है। तो मेन क्यों चाहिए, क्योंकि ऑथेंटिक रॉ मटेरियल चाहिए। और दूसरा है कि अडल्ट्रेशन जो हो रहा है अभी, जो है कि आयुर्वेदा में जो मेडिसिन अच्छे क्यों नहीं मिल रहे या रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें अडल्ट्रेशन होता है। और अडल्ट्रेशन क्यों होता है, एक तो वो मेडिसिन इजीली मिलती नहीं है नेचुरली या प्लांटेशन करके भी, या उसके रेट ज़्यादा है। तो ये अडल्ट्रेशन करना है, कम करना है, तो उसके लिए फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, या उसका फार्मिंग ज़्यादा पैमाने में करना चाहिए। तभी उसके रेट भी कम हो गए, और अडल्ट्रेशन जो होता है वो अडल्ट्रेशन भी कम होगा। तो उससे औषधियाँ अच्छी बनेगी और रिजल्ट भी आएंगे। और एक है कि ज़्यादा जो नेचुरली अभी प्लांट्स है या कुछ मेडिसिन है, वो ज़्यादा ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो वो अगर हमें टालना है तो हर्बल फार्मिंग की ओर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और जो है दूसरा कि एक तो विटामिनियम सर जैसे बोलते हैं कि इसमें जो फार्मर है उसके लिए भी, और कृषि वैद्य जिनका फार्मिंग का बैकग्राउंड है और वैद्य है, तो ये कर सकते हैं कि हर्बल फार्मिंग करके उसके प्रोडक्ट बना के, या जैसे कि अभी सफ़ेद मूसली है, उसके 2,000 रुपये किलो रेट है अभी। तो ये फार्मर के लिए भी बेनिफिशियल है। और फार्मर तो ड्राई करके 2,000 रुपये किलो से बेच सकता है, पर वैद्य जो है उससे मेडिसिन बना के वो 10,000 रुपये किलो में भी ये बेच सकता है। तो वैल्यू एडिशन वैद्य उसमें कर सकते हैं। और बाद में रिसर्च और इनोवेशन, अभी पीजी के कुछ प्रोजेक्ट रहते हैं, पीएचडी प्रोजेक्ट रहते हैं, या इंस्टीट्यूशनल कुछ या फार्मेसी के अलग अलग प्रोजेक्ट रहते हैं, उसके लिए ऑथेंटिक रॉ मटेरियल की नीड होती है। तो वो सप्लाई करने के लिए या रिसर्च अच्छा होने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो इसमें हर्बल फार्मिंग एक सपोर्ट, या वो रिसर्च अच्छा हो इस पे हेल्प कर सकती है। और प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर अभी जैसे आचार्य चारंदर ने बताया कि कुछ द्रव्य फ्रेश ही लेने चाहिए, जिसमें गुडूचा है, कुटज है, वासा, कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचर, शतपुष्पा। उसके अलावा वासा, निम्ब, पटोल, ब्राह्मी है, उसमें भृंगराज है। तो ये मेडिसिन अगर फ्रेश लिए जाए
और उसके मेडिसिन अगर बनाए तो उसके फ्रेश लेने की वजह से उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, वो जो कि ड्राइड के कंपैरेटिवली फ्रेश में ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कुछ फॉर्मुलेशन है, उसमें माँ नारायण तेल है, उसमें शतावरी का सोरस बोला है, सारस्वत अरिष्ट है, उसमें ब्राह्मी सोरस बोला है, समीर पन्नग रस के लिए तुलसी पत्र सोरस आए है, आरोग्यवर्धिनी रस में नींबू सोरस की भावना आई है, लघु सूत शेखर है, स्मृति सागर रस में ज्योतिषमती तेल, त्रिभुवन कीर्ति रस में निम्ब वासद तुर तुलसी, इतने द्रव्य की भावना या शोधन के लिए कुछ आया है उसमें। नित्यानंद रस त्रिफला सोरस और उसका काढ़ा बोला है, सूत शेखर में भृंगराज सोरस, और लघु सूत शेखर में नागवेली सोरस, नागवेली के पत्र जो है उसकी सोरस का। तो हम ये जो है लघु सूत शेखर जो है उसमें लगता है गैरिक, शुंठी और नागवेली। तो उसमें जो गैरिक है उसके रेट बहुत कम रहते हैं, लगभग 50 रुपए किलो से भी नीचे वो मिल जाता है इजीली। और शुंठी है वो फार्म में भी लगा सकते हैं, जिंजर जो है, और नागवेली सोरस, तो ये तीनों अगर खुद के रहे तो उसकी कॉस्टिंग जो है 200 रुपए किलो से नीचे रहती है। 200 अगर खुद उसका प्लांटेशन किया जाए तो, और उसके अभी मार्केट के जो रेट है वो 2000 रुपए किलो है। तो ये सब वैल्यू एडिशन हो सकता है। उसके साथ अब अगर फार्मिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, तो उसमें सबसे पहले है कि उसके लिए भूमि जो है, लैंड जो है, तो वो अपने आयुर्वेदा में आया है ये ग्रंथों में कि उस अलग अलग 3 प्रकार के देश बोले हैं, उसमें जांगल है, साधारण है और अनुप है। तो जांगल देश जैसे कि जहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो वो एरिया में ज़्यादातर जिसमें कांटे या थॉर्न जो आते हैं तो वो प्लांट्स वो एरिया में लगा सकते हैं। तो उसमें खदीर है, बाबुल है, कंटकारी, वासा, अर्क, सहचर, अपामार्ग और गुगुल। गुगुल जो है कि राजस्थान और कुछ गुजरात की जो साइड है जहाँ पे पानी कम रहता है तो वो साइड से ज़्यादा आता है। साधारण देश जैसे मराठवाड़ा है जहाँ पे जो जो एरिया में मॉडरेट लेवल का वाटर रहता है, और वहाँ पे बिल्व, शोनागंबरी, नीम जैसे प्लांट आते हैं। और अनूप देश जहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है, और वहाँ पे लोटस है, ब्राह्मी, वाचा, भृंगराज, ये टाइप में ये प्लांट्स का हर्ब्स का प्लांटेशन कर सकते हैं। तो जैसे गर्भ तैयार होने के लिए जो लगता है कि ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजा नाम जो श्लोक है, वैसे ही हर्बल प्लांटेशन के लिए भी सेम ऋतु फर्टाइल जो है टाइम लगता है। क्षेत्र यानी प्रॉपर वेल प्रिपेयर्ड सॉइल लगती है, अम्बु यानी प्रॉपर वाटरिंग और न्यूट्रिएंट जो है, जो कि जैसे अभी जीवामृत है या दशपर्णी अर्क है वो ड्रिप से छोड़े जाते हैं, तो वो और उसके साथ एक प्रॉपर बीज चाहिए, बीज चाहिए, हेल्दी सीड चाहिए, सीड या कटिंग। और उसके साथ गोपालन, अगर गोपालन किया जाए जैसे सर का गाय तो ग्राम का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे ही उससे क्या कर सकते हैं कि खुद के मेडिसिन के लिए जो है गोदुग्ध या गोघृत जो लगता है ये, बाकी जो उनके काउ जो ये रहते हैं तो उससे पंचगव्य या उसके जो कंपोस्ट फर्टिलाइजर बना सकते हैं, और बायोगैस। तो ऐसे अलग अलग गोपालन करने के बाद ऑप्शन भी बढ़ते हैं, और मेडिसिन में भी उसका ज़्यादातर फार्म गोपालन का एक हेल्प होती है। ये फार्म का वीडियो जब हम इसके लिए कैटल के लिए फीड कलेक्ट कर रहे थे, ये मेज है उसकी कटिंग कर रहे हैं ट्रैक्टर की सहायता से। और उसकी जो ये रहते हैं काउडंग की कौरी जो रहती है तो वो जो है उपले जो बोलते हैं उसे, तो ये भस्मीकरण के लिए भी इस्तेमाल में आ सकते हैं। और बायोगैस का तो मैंने बोला ही कि अभी गैस की इतनी ज़्यादा कमतरता है, तो ये बायोगैस, नेचुरली बायोगैस अगर 2 गाय रही तो लगभग 10 लोगों का उस पे गैस का काम हो सकता है। तो ये ऐसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर गाय का पालन किया जाए तो सेल्फ डिपेंडेंट विलेज यानी सेल्फ डिपेंडेंट हम हो सकते हैं।
और इसमें जो है फार्मिंग का जो अप्रोच रहना चाहिए वो कि उसकी प्लांट की जो है वो एक साइकिल पता होनी चाहिए कि कब उसका सीड्स लगाना है, कब वो ग्रो होगा, कितने दिन में उसका जर्मिनेशन होता है, कितने दिन में वो उसको वाटरिंग करनी चाहिए, न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर कब डालने चाहिए, उसका हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, और हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको स्टोरेज कैसे करना है। तो ये सबका एक लाइफ साइकिल की स्टडी करनी चाहिए। हमारा फार्मिंग का बैकग्राउंड था तो हम ये धीरे धीरे सीखते गए, और मेरा जो 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस था यूजी कॉलेज में कि हर एक 1-2 महीने के बाद में सेम जगह पे जाता था, तो वो प्लांट्स अलग अलग सीजन में कैसे दिखता है या क्लाइमेट का क्या चेंजेस होता है, ये 4-5 साल सीखने को मुझे मिले। तो इसीलिए अभी ये विश्व भविष्य फार्म में हमने लगभग 350 से ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज लगाए हैं। उसमें से 50+ प्लांट्स की हमने लाइफ साइकिल मोर देन 3 या 4 टाइम हमने उसका साइकिल कंप्लीट हुए हैं, यानी सीड से लेके उसका हार्वेस्टिंग करके उसके मेडिसिन बनाने तक का इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमने किया है। इसके साथ सीजन का बोला मैंने, हेल्थ का असेसमेंट जिसमें टेक्सचर कैसी होनी चाहिए सॉइल की, फर्टिलिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर की ये कितना है उसमें, तो उस पर ज़्यादातर ये उस पर ध्यान देना है। और कुछ पेस्ट मैनेजमेंट है, ज़्यादातर आयुर्वेदिक जो हर्ब्स है उस पर ज़्यादा पेस्ट या डिसीज आते नहीं है, पर अगर कुछ होते भी है तो उसमें दशपर्णी जीवामृत ये स्प्रेड कर सकते हैं। और अपने जो तिक्त रस के जो द्रव्य कुछ आए हैं जैसे वासा है, निम्ब है, या पटोल है, जो अपने पंचतिक्ता है उसके साथ भी कुछ फार्म में हमने ये लगा है कि जो जिससे गाय इजीली खाते नहीं है और वो तिक्त रस के है, तो उसका अर्क बना के वो अर्क खेती पे स्प्रे करना है। तो उससे क्या होता है कि जो बटरफ्लाइज रहते हैं या अलग अलग जो इंसेक्ट रहते हैं तो उसके एग जो है वो प्लांट पे देते नहीं, वो दूसरे प्लांट पे शिफ्ट हो जाते हैं और अपने प्लांट जो है उससे बच जाते हैं उसके अटैक से। और बाद में जो है कि ऑर्गेनिक और पेस्ट मैनेजमेंट की अलग अलग मेथड जो आपने मैंने अभी बताई है आपको, और प्लांट ग्रोथ और ईल्ड और उसकी मेडिसिनल क्वालिटीज़ कैसे होनी चाहिए, जैसे कि अभी नेचुरली जो मिलता है तो वो टाइप में मेडिसिन की फार्मिंग करके दोनों क्वालिटीज जो है वो मैच होनी चाहिए। तो ज़्यादातर हमारा फोकस है ये है कि जो एरिया में जो आता है तो उसका ही प्लांटेशन करना चाहिए। अभी हमारे फार्म के आजू बाजू में पटोल ज़्यादा आता था तो हमने पटोल की फार्मिंग की, कपी कच्चू नेचुरली आता था। जो हमारा रिवर की जो गांव के बाजू में जो रिवर की साइड थी वहाँ पे भृंगराज और ब्राह्मी अच्छे से आती थी, तो हमने वो प्लांट पे ही ज़्यादा फोकस किया कि जो हमारे आजू बाजू में इजीली और नेचुरली आते हैं, तो उसमें ज़्यादा इंसेक्ट भी या इंसेक्ट का पेस्ट का अटैक होता नहीं है, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर आते हैं तो उसकी पोटेंसी जो है वो एरिया में प्लांटेशन करने के बाद या फार्मिंग करने के बाद वो अच्छी रहेगी। तो उस पे जो नियरली जो आता है तो वही हमने प्लांटेशन करना है ज़्यादातर। तो उसके अगर प्लांट्स आपको लेने हैं तो ये कहाँ से ले सकते हैं, तो एक है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो उसकी हर एक इंडिया में ऑल ओवर उनके ब्रांचेस है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान ये चारों स्टेट का पुणे में सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ है, वहाँ पे डिविजनल बोर्ड है उनका। तो वहाँ से आप ये कलेक्ट कर सकते हो। कुछ जो है कि गवर्नमेंट की जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है तो वहाँ से भी प्लांट्स या सैपलिंग कलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे उनकी सीड बैंक रहती है तो वहाँ से सीड कलेक्ट कर सकते हो। और कुछ प्राइवेट नर्सरी है जैसे कुरैशी नर्सरी, कलाला, जेई फार्म नर्सरी। और हमने भी अभी फार्म में अगले साल से हमारा स्टार्ट होगा कि सैपलिंग हम प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ जो एक्सपर्टीज लगती है तो वो कम्प्लीटली हमारे विश्व भविष्य की टीम रहेगी। और अभी हमने कुछ एक 15 अलग अलग हब्स की सीड बैंक अभी फिलहाल तो हमारी तैयार है। तो उसमें है कि एक तो सीड से प्लांटेशन कर सकते हैं, कुछ राइजोम से, जैसे कि सीड से जो आता है कपी कच्चू है, भृंगराज है, पटोल है। राइजोम से जो आता है उसमें है टर्मेरिक है यानी हरिद्रा, अदरक जो है, जिंजर और सफ़ेद मूसली जैसे जो कि राइजोम से आते हैं। और कटिंग जिसमें अग्निमंथ है, निर्गुंडी है, ये कटिंग से इजीली प्रोपोगेट होते हैं।
प्रिपरेशन ऑफ प्लांट, तो इसमें क्या करना है कि कंपोस्ट जो फर्टिलाइजर है फार्म का, तो वो कलेक्ट करके जो फार्म का जो कुछ वेस्टेज रहता है तो वो सब कुछ कंपोस्ट करना है। उसका कंपोस्ट करने के बाद वो फार्म में यूज़ करना है। और एक जो है कि जूट, आपने वो ताक का सुना होगा, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो 12 में सभी को पता होगा, 12 में, कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो जूट के जो प्लांट्स रहते हैं उसके जो रूट्स रहते हैं उसके नोडुल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। तो इसका हम प्लांटेशन करते हैं और वो रोटावेटर ट्रैक्टर की सहायता से उसे कट करके फार्म में गाड़ देते हैं, तो जिससे नाइट्रोजन जो कंटेंट है सॉइल का वो बढ़ता है और फार्मिंग या जो यील्ड है प्लांट का वो अच्छे से आता है। ये फार्म के प्रिपरेशन के कुछ वीडियो है। जो मिडल वाला जो वीडियोस है ये हमने फार्म की जब जो हमारा अभी गार्डन है विश्व भैषज का, तो लगभग वहाँ पे 350 स्पीसीज है। तो ये हमें गार्डन की स्टार्ट करनी थी, पर आयरन की डेफिशिएंसी थी फार्म में। और वो क्यों थी, क्योंकि वाइट टाइप की मिट्टी जो थी सॉइल में वो ज़्यादा थी हमारे फार्म में। तो हमने ऊपर की जो 3 फीट का जो लेयर था फार्म का, तो ऊपर का पूरा 3 फीट का लेयर निकाल के वहाँ पे ब्लैक सॉइल और कुछ जो महाराष्ट्र में उसे मुरुम वाली मिट्टी बोलते हैं, जहाँ पे कंकड़ ज़्यादा होते हैं उसमें, और जिससे वाटर जो है स्टैग्नेंट यानी एक जगह पे नहीं रुकता, वो पर्कुलेट होते रहता है। तो वो वाली मिट्टी, जैसे हिली एरिया जो रहता है वहाँ पे पानी स्टोर नहीं रहता, वो पानी यानी बारिश होने के बाद इजीली बह जाता है और वो स्टैग्नेंट नहीं होता। तो वो मिट्टी ज़्यादातर प्लांट को लगती है। तो हमने वो मिट्टी वहाँ पे डाली और बाद में आप आगे देखोगे कि वो ग्रोथ कैसी हुई है। 2023 में हमने ये स्टार्ट किया था और 2023 में गार्डन की स्टार्ट की थी। जो जेसीबी जो बीच में का जो फोटो है वो ये मिट्टी है, कंकड़ वाली जो मिट्टी है। ये बाद में 1 साल के बाद का वीडियो है, बीच वाला जो है। इसमें हमने कंपाइल की है कि फार्म में जो कुछ एक्टिविटीज और मशीन मैकेनिकल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं उस पर हमने ज़्यादातर फोकस किया है। और पेस्ट मैनेजमेंट का जो है कि जिसमें हम जीवामृत और अलग अलग ट्रैप के जो फ्रूट बोरर है उसके लिए ये जो है देख सकते। ये टोमेटो के लिए बोरर है एक, उसकी उस पे एक इंसेक्ट था कि वो डंग मारता था और वो टोमेटो पूरा सड़ जाता था। तो ये सोलर का ट्रैप है, वो रात में एक्टिवेट हो जाता है और उसमें वो जो इंसेक्ट है तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो उससे एक फ़ायदा होता है कि ये प्लांट पे स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे वो जो इंसेक्ट है वो आ जाते हैं और ऑर्गेनिकली ये फार्मिंग कर सकते हैं। और एक है कि मेरी फोटोग्राफी का जो है ये हमने इस्तेमाल ऐसे है कि अलग अलग जो प्लांट्स है पेस्ट है उसकी लाइफ साइकिल भी हमने डॉक्यूमेंट की है। ये बटरफ्लाइज है, ये कैटरपिलर ज़्यादातर बिल्व का जो कुल है जिसमें रूटेसी फैमिली जो है उसमें ज़्यादातर ये कैटरपिलर जो है एज अ पेस्ट रहती है। उसका पहले एक था ये, बाद में छोटा कैटरपिलर, बड़ा वाला टोड कैटरपिलर और उसका बटरफ्लाई। भी वाटर मैनेजमेंट कैसी करनी है तो उसमें अलग अलग मीडिया है कि एक तो डायरेक्टली पानी देना है, तो हमने सोलर का पंप जो कि अभी सब्सिडी मिलती है महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उनसे कि 3 HP के लिए अगर 20,000 रुपये दिए तो 3 HP की मोटर मिल जाती है उसमें पंप जो है, और 30,000 में 5 HP की मोटर मिल जाती है। और पानी की ज़्यादा ज़रूरत जब जब होती है समर में ज़्यादातर, या जब धूप ज़्यादा रहती है, तो ये सोलर का जो है ये एक बहुत कन्वीनियंट या अच्छी ये है कि गवर्नमेंट भी उस पर सब्सिडीज देती है, तो सोलर का पंप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो फर्स्ट फोटो है उसमें पानी स्टैग्नेंट होना चाहिए। जो एक ब्राह्मी का फार्म है
तो ब्राह्मी में पानी ज़्यादा लगता है, उसमें वचा का भी जो बड़े पौधे दिख रहे हैं उसमें तो वो जो है वो वचा के है। तो हमने सुवर्ण प्राशन के लिए उसका प्लांटेशन किया था, तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है वो प्लांट को। और कुछ जो है जो नीचे जो पाइप दिख रहे हैं छोटे, तो वो जो है उसमें ड्रिप इरिगेशन है ये। और ये आगे जो अभी वीडियो प्ले हो रहा है ये भृंगराज ज़्यादातर रेनी सीजन में आता है, पर हमने वो समर में लाया है क्योंकि हमने जैसे उसे नेचुरली वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि वो यानी रेनी सीजन के जैसे हो, मॉइस्चर बढ़े, दिन में 3 या 4 बार उसको पानी दिया जाता है। तो यील्ड जो है रेनी सीजन से हमें दुगना यील्ड समर में मिला प्लांट भृंगराज का। तो ऐसे अलग-अलग टेक्निक है, धीरे-धीरे सीखते रहते हैं, एक्सपीरियंस जैसे आता है उसके अकॉर्डिंगली। तो भृंगराज का हमें लगभग एक 10 टन के आसपास भृंगराज पिछले साल में हमने निकाला है फार्म से। जो 5 एकड़ फार्म था उसमें कुछ फार्म में हमने इंटरक्रॉपिंग भी की थी, और कुछ में ब्राह्मी भृंगराज का इंटरक्रॉपिंग, कुछ में टोमेटो और भृंगराज की इंटरक्रॉपिंग। तो ऐसे अलग-अलग इंटरक्रॉपिंग के साथ ऐसे हमने 10 टन के आसपास भृंगराज निकाला था। तो उसमें हमें सबसे बिगेस्ट प्लेयर जो है हिमालय कंपनी, तो उनकी भी ऑर्डर आई थी। पर वो वक्त हमारे पास उतना ज़्यादा भृंगराज अवेलेबल नहीं था, पर हमने बाद में कुछ 2-3 बैच के लिए उन्हें यहाँ से पार्सल भेजे थे भृंगराज के। ये जो है मेन जो है इसमें प्रॉब्लम जो आता है कि लेबर का मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल वर्क के लिए या हॉस्पिटल के लिए स्टाफ इजीली मिल जाता है, पर फार्मिंग के लिए जो है एक तो स्किलफुल लेबर या जिनको मेहनत करने की इच्छा है, ऐसे लोग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। पर ये थोड़ा सा उनको वो इंस्पायर होने चाहिए जो वर्क हम कर रहे हैं। या हमारी जो जो हमने अभी टीम बनाई है, तो एक 10 लोगों की टीम है फार्म में। तो ये मोटिवेट होते रहते हैं कि और उनका हम पूरा जो उनका हॉस्पिटल का जो कुछ रहता है या उन्हें कुछ अगर बीमारी हुई तो हम वो पूरा हमारे फार्म की हमारे हॉस्पिटल के तरफ से फ्रीली करते हैं। तो ये हम उम, वो इजीली अटैच हो जाते हैं, और फार्मिंग में ज़्यादातर प्रॉब्लम आते नहीं है बाद में। ये वो सीड कलेक्शन से लेके ये प्लांट हार्वेस्ट करके उसे स्टोर करने तक का वो अभी ट्रेन हो चुके हैं उसमें। तो ये अभी शतावरी के हम सैपलिंग तैयार कर रहे थे। तो उसमें एक है कि बाद में प्लांटेशन करने के बाद हार्वेस्टिंग करनी है। तो हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, तो अलग अलग सीजन आया है। जैसे अभी कुछ रूट का जो बोला है कि ये ग्रीष्म ऋतु में करने चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में क्योंकि जो प्लांट के लीफ गल जाते हैं, तो उसके रूट्स की पोटेंसी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है। तो जैसे हमने ये शतावरी का है नीचे फोटो, ऊपर जो है वचा का हार्वेस्टिंग कर रहे थे। तो ये हार्वेस्टिंग करनी है। टूल क्या चाहिए, तो उसके लिए एक तो हाथ से भी निकाल सकते हैं, और कुछ है कि मैकेनिकल हार्वेस्टिंग जैसे जेसीबी। अभी शतावरी निकालनी है तो वो बहुत मुश्किल जाता है हाथ से निकालना, तो उसको मैकेनिकली निकालना पड़ता है। बाद में उसकी ड्राइंग, तो ड्राइंग के भी 2-3 मेथड है। सन ड्राइंग कर सकते हैं, मैकेनिकल ड्राइंग कर सकते हैं। उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना है रैट से बाद स्टोर करने के बाद। और ओवर हीट जो है ज़्यादा हीट में भी उसे ड्राई करना नहीं है। थोड़ा छाया शुष्क जो बोला है, जैसे कि एरोमेटिक कुछ प्लांट्स रहते हैं, तुलसी है अलग अलग, या मेंथोल की वैरायटी है। तो उसे छाँव के नीचे ही सुखाना है, छाया शुष्क जो बोलते हैं। और जो हम मेडिसिन फार्म प्लांटेशन करते हैं, तो उसके जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका हमारा ये स्टोरेज है। तो उसमें लगभग 40 से ज़्यादा हमारे फार्म में ग्रो किए हुए हब से बनाए हुए मेडिसिन है। तो उसमें अलग अलग घृत तेल, कुछ कल्प है, कुछ पाउडर है, किरी चूर्ण है। और कुछ अवले है जैसे च्यवनप्राशी, वास अवले है, ब्राह्मी अवले है।
तो अभी ये आगे जो है ये सिंगल प्लांट के हमने जो अभी शतावरी का प्लांटेशन किया था, तो उसका जो है टोमेटो के साथ हमने इंटरक्रॉपिंग की थी। सक्सेसफुल हर्बल इंटरक्रॉपिंग मेथड के बारे में। मैं हूँ कृषि वैद्य माधव संजय गायकवाड़ और यह दृश्य जो आप देख रहे हो यह है वैद्य गायकवाड़ ब्रदर्स का ऑर्गेनिक हर्बल फार्म। एक तरफ है किचन में महिलाओं का पसंदीदा टमाटर और एक तरफ है श्री रोग नाशक शतावरी। शतावरी माताओं में दूध की कमी, गर्भस्राव, कमजोरी, मासिक समस्या जैसे कई समस्याओं का निवारण हेतु यूज किया जाता है। इंटरक्रॉपिंग के लिए इंस्टेड ऑफ शतावरी हम कपी कच्छू, गुड़ुची, पटोल, कारवल्यक और पाठा जैसे औषधियों का भी चयन कर सकते हैं। लेट्स मॉडर्नाइज अवर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मेथड्स विद सम आयुर्वेदिक टच। ये जो टोमेटो का आपने टोमेटो और शतावरी का जो वीडियो देखा है, ये मोस्टली हम ज़्यादा समर का जो सीजन रहता है वो उसमें ही करते हैं, क्योंकि टोमेटो के रेट जो है वो पीक में रहते हैं। आपने कोविड में सुना होगा कि टोमेटो के रेट 200 रुपये किलो के आसपास गए थे, तब का ये प्लॉट है। यानी शतावरी से हमें दुगने पैसे वो टोमेटो के मिले थे। और हर साल हम वैसे ही करते हैं कि वो समर में करते हैं। समर में उसका यानी मार्च फेब टू मार्च के आसपास उसका प्लांटेशन करते हैं टोमेटो का, और वो मई के एंड तक वो ड्राई हो जाता है, टोमेटो की हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो उसके बाद जो उसका सपोर्ट रहता है टोमेटो या सूखे हुए टमाटो, तो उसके ऊपर हम शतावरी या पटोल, कपी कच्छू ऐसे लता वर्ग के जो कुछ प्लांट है तो वो लगा देते हैं। यानी पहले से ही मार्च अप्रैल के आसपास ही तो दोनों का शतावरी भी आ जाती है उसमें, शतावरी कपी कच्छू अपने आयुर्वेदिक प्लांट भी, और जो ट्रेडिशनल क्रॉप है ये भी हो जाते हैं। और उसमें जो है कि कुछ इंसेक्ट जो है वो भी ये नहीं करते कि हमने अभी तक 3-4 साल में उसके अलग अलग रोटेशन लिए, तो पेस्ट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया कि टोमेटो के इंसेक्ट जो है ये पटोल या कपी कच्छू या शतावरी पर हुए है, तो उसका कुछ प्रादुर्भाव ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो दोनों तरफ से ये विन विन कंडीशन हो जाती है और यील्ड भी बढ़ता है। अभी ये साल हमने टोमेटो की फार्मिंग की थी। 2 एकड़ का प्लॉट था, तो उसमें 2 एकड़ में हमें 10 लाख के आसपास टोमेटो के निकले हैं, और उसमें अभी शतावरी है। तो शतावरी का और 1 साल लगेगा, पर उसमें हमारा जो कुछ खर्चा था 2 साल का पूरा ये इनकम हमें हो गया है। और शतावरी हम वैसे ही रख देंगे, जैसे नीड लगेगी वैसे शतावरी हार्वेस्ट करके मेडिसिन बनाएंगे। ऐसे ही अलग अलग प्लांट की। ये ब्राह्मी का है, 2021 में लगाई थी, 2022 में फुली ग्रोन ब्राह्मी और ओछा, उसका हमने सुवर्ण प्राशन बनाया था, और उसका ब्रांड एम्बेसडर मेरा बेटा ही है, एकांश। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत और वो हमें मेडिसिन बनाने में, और अभी उसका नर्सरी में फर्स्ट नंबर आया है, संभाजी नगर में उसके स्कूल है। माना तेरी सूरत की है चांदी, उसको हर एक द्रव्य के नाम पता है जो हमने फार्म में लगाए है। ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां। सोच हमने अभी तक जो किया है इतने दिन के बाद, तो वो सफारी तक हमारा ये यानी जर्नी हुई है। पर वो बोलता है कि मुझे डिपेंडर चाहिए और डिपेंडर के लिए जो वीडियोज लगेंगे वो मैं खुद ही बनाऊंगा, सबसे छोटा ब्लॉगर होगा आयुर्वेदा का। और ये भृंगराज है। भृंगराज का जब ज़्यादातर हम हेयर ऑयल में और कुछ उसके एकेरी चूर्ण है, एकेरी चूर्ण के और हम यूज़ करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जो है ये सीड दिख रहा है इसका ऊपर जो है, उसके बाद जो प्लांटेशन हमने वो नेचुरली उसको वैसे इन्वायरमेंट तैयार करके दिया था। और नीचे जो है इंटरक्रॉपिंग का जो फोटो है उसमें कॉलीफ्लावर और भृंगराज है। और ये आगे जो वीडियो दूसरा प्ले हो रहा है ये भृंगराज का है। बहुत खूबसूरत हो आप सर से पात
तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम और ये मेडिसिन बनाने का एक फायदा है कि रॉ मटेरियल खुद के होने की वजह से जो मेडिसिन की जो कॉस्टिंग रहती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो वो बहुत कम हो जाती है। और उससे एक तो रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, तो जेन्युइन कस्टमर भी मिल जाते हैं। और जो अभी एस्टेब्लिश जो कंपनीज है, फार्मेसीज है, तो उनको ये टक्कर दे सकते हैं। नहीं तो स्टार्टिंग में सिर्फ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करके खुद की फार्मेसी बनाना अभी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि अगर फाइनेंशियली सपोर्ट रहा तो वो कर सकते हैं। पर खुद जिनको फर्स्ट टाइम ही आयुर्वेदा में आए या जिनको कुछ पता नहीं है, तो उनको ये फार्मेसी खुद की बनानी थोड़ी सी अभी मुश्किल है। पर ये अगर फार्मिंग की जाए तो ये इजीली कर सकते हैं। तो ये अभी फार्म जो है वो रिजनरेशन मोड में गया है। भृंगराज जो कि हमने पुणे के जो नाला जो सीवेज रहे थे वहां से इसके सीड्स कलेक्ट किए थे। तो ये सीड्स इतने अभी हुए हैं कि लगभग 100 एकड़ के आसपास हम भृंगराज लगा सकते हैं। उतने सीड्स हमने अभी तक कलेक्ट किए हैं। तो उसके बाजू में ये छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं सीड गिरने के बाद भृंगराज के। तो ये ऑटोमेटिकली बाद में बहुत इजी हो जाता है। स्टार्टिंग के जो 2-3 साल रहते वो थोड़े मुश्किल रहते हैं। ऐसे ही शोनेक का है, उसकी लाइफ साइकिल ही है पूरी, सीड से लेके ये मैंने तामिनी घाट से उसके सीड्स कलेक्ट किए थे। ये अलग अलग स्टेजेस में उसका वीडियो है। अब इसके पीछे का इकोनॉमिक जो है, आपने ये बात लास्ट वाला जो रूट का जो फोटो था उसका वीडियो में, तो ये लगभग उससे हमें यील्ड मिला एक 60 किलो के आसपास सिंगल प्लांट मिला था हमें ड्राइंग करने के बाद 2 साल में। तो अभी मार्केट के जो रेट है वो 100 रुपए किलो मिलता है दशमूल, वो भी पंचांग रहता है। तो रूट्स ही हमें लगभग 20 किलो के आसपास रूट्स मिले थे। और रूट्स के अभी के जो रेट्स है ओरिजिनल, तो उसके 400 रुपए किलो रेट है। तो नहीं 8 यानी 8,000 रुपये हमारे सिर्फ रूट के हुए हैं। और ऊपर का जो पंचांग है तो उसके वो या 40 किलो वो निकला है। तो 4,000 रुपये वो और 8,000 यानी 12,000 का सिंगल प्लांट हमें पड़ा है अभी। तो इसकी हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं, 2 साल के बाद उसको हार्वेस्ट करना है। वैसे ही गंबारी का है, यह हरिद्रा का है। ये अलग अलग 1-1 महीने के बाद के वीडियोज है। 6 महीने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। माधव, मैं देख रहा हूँ ये ये आपकी जो खेती है इसमें इतना सा भी ऐसा इरेगुलरिटी नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल प्लास्टिक इज सीन इन द वीडियोस। और ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखता है कि आपने मेंटेन नहीं किया या फिर थोड़ा सा दुर्लक्ष हुआ है। व्हाट जेम यू आर यार, बहुत अच्छा किया है। मेरे सामने जो अभी स्टूडेंट बैठे हम यही बात कर रहे हैं कि आपने सारे वीडियो जो दिखाए उसमें एक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि देखा नहीं है, दुर्लक्षित हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। सो मच गुड डॉक्यूमेंटेड एंड बहुत अच्छा, मतलब आनंद हो रहा है ये देख के सच में। इसके लिए एक तो डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए सर, क्योंकि अभी जो है फार्मिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग करना ही थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें ये हर्बल फार्मिंग करना, अलग अलग क्रॉप, कौन सा क्रॉप कब हार्वेस्टिंग के लिए आता है वो पता होना। पर वो अगर डेडिकेटेड टीम रही तो ये कर सकते हैं। करेक्ट। सो गुड, प्लीज कंटिन्यू। ये कपी कच्चू है, ब्लैक कपी कच्चू हमने लाया था। ये पद्मश्री राय भाई जो है उनके पास से हम उसके एक 15-20 के आसपास सीड्स मुझे मिले थे। इसके वाइट के कंपैरेटिवली ब्लैक के रिजल्ट जो है ना वो अच्छे हैं। और ज़्यादा कपी कच्चू जो है ईचिंग करता है, पर ये जो ब्लैक वैरायटी जो लाई थी मैंने, तो वो ईचिंग नहीं करती। तो इसका प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। ये प्लांटेशन करने के बाद का वीडियो है।
20 सीड्स से हमने फर्स्ट ईयर में लगभग 5 किलो के आसपास सीड्स मिले थे। वो पूरे हमने प्लांटेशन के लिए ही छोड़ दिए, मेडिसिन नहीं बनाए उसके। और बाद में जो 5 किलो जो आए थे उससे प्लांटेशन किया आगे, तो उससे हमें 5 क्विंटल के आसपास 500 किलो कपी कच्चू के सीड्स मिले थे। तो अभी ये ब्लैक वैरायटी भी अवेलेबल है। नहीं तो ये राई भाई हमें बोल रही थी कि ये जो है ये एक्सटिंक्ट होते आई है ये वैरायटी, जो कि ईचिंग वाली तो मिल जाती है, पर ये ब्लैक वाली होते हुए और ईचिंग न करने वाली वैरायटी है। तो ये तुम आगे कंजर्व करो। तो हमने ये किया है, और आगे जो हमारा फार्मिंग का सेशन रहने वाला है, तो उसमें हमें उनको इनवाइट किया है कि ये कंजर्वेशन कैसे करना है सीड्स का। और ये उसकी लाइफ साइकिल है कपी कच्चू की। इसका अलग अलग फ्लावरिंग का स्टेज, फ्लावरिंग की स्टेज है ये। इसके रोम भी कृमि जो रोग है उसमें उसके रोम यूज होते हैं। ये वाइट वाली वैरायटी है, और इधर जो ये जो है ये ब्लैक वाली है। अभी इसके साथ भी हम फार्म में आमला, सहचर, बला, अस्थि श्रृंखला, चित्रक, नागवेली, चांगेरी, ऐसे अलग अलग बहुत सारे 50 से ऊपर प्लांट्स ले रहे हैं। उसके साथ में हम जो वेजिटेबल्स है वो भी ले रहे हैं। उसके साथ जो फ्रूट्स चाहिए वो भी हमने फार्म में लगाए। हर एक फ्रूट्स के लगभग 8, 10, 15 पेड़ हमने लगाए। हमारा प्लान आगे ऐसा है कि खुद का NABH हॉस्पिटल फार्म में ही होना चाहिए। और यहाँ पे जो पेशेंट आएंगे उनके लिए खुद की प्लांटेशन किए हुए जो वेजिटेबल्स है, ये जो ऑयल लगता है वो भी खुद का ही फार्म में ग्रो किया हुआ जो ये है जो तेल वर्गीय भी है, तो वो भी उससे निकाला हुआ ऑयल उनको यूज में आए। और जो कुछ जैगरी लगती है या शुगर लगती है, तो शुगर तो नहीं बना सकते पर जैगरी बना सकते हैं, गुड़ जो है। और ऐसे ही मेडिसिन तो हम बना ही रही है। तो हमारा ये ऐसा है कि पूरा सेल्फ डिपेंडेंट आयुर्वेद का ग्राम होना चाहिए। तो उस पे हमारा अभी काम चल रहा है। और एक जो है इकोनॉमिक्स जो है अभी एंड हर्बल फार्मिंग, तो उसमें अभी फ्रेश ब्राह्मी वो जो है लगभग 20 से 100 रुपए के बीच में पर केजी के रेट रहे थे फ्रेश के। अगर वो किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है तो 15-20 रुपए किलो से ही लेता है। तो उसका चूर्ण बना के जो है 300 रुपए किलो से बेच सकते हैं, यानी 10 गुना उसका वैल्यू एडिशन हुआ। तो ब्राह्मी वटी अभी मिनिमम 2,000 रुपए किलो रेट है। और उसको अगर भावना दिया जाए और सप्ताह भावित किया जाए तो वो 3-4 हज़ार तक भी किलो रेट है। और ये वैद्यों के लिए। और बाद में जो है अगर खुद के पेशेंट के लिए ये दिया जाए तो उसके 1 किलो ब्राह्मी के जो है वो 10,000 रुपये हो सकते हैं। तो ये जो है इकोनॉमिक्स है। इसीलिए हमारे जो क्लिनिक जो है 2 सेटअप हुए हैं, और दोनों भी अभी नील है। हमें जो इन्वेस्टमेंट थी या सब कुछ हमने इंटीरियर वो पूरा 2 साल के अंदर ही हमने नील कर दिया है पूरा। तो ये स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है ये मैनेज करना, पर ये फार्मिंग की वजह से हमें ये थोड़ा आसान हुआ। और फाइनेंशियली हम कहाँ पे अटके नहीं, ये जो फ्लॉलेसली होते गए। और चैलेंजेस तो मैंने बताई है कि क्लाइमेट का एक रहता है, सीड प्लांटिंग मटेरियल मिलना चाहिए अच्छे से, पेस्ट डिसीज मैनेजमेंट, लॉन्ग ग्रोथ जो है। अभी कुछ प्लांट है जैसे ट्रिपल आके जो कुछ प्लांट है, तो उसमें जो बीबी तक है, तो बीबी तक जो है नेचुरली मिल जाता है, सिर्फ उसको कलेक्ट करके लाना है। अगर उसका फार्म में प्लांटेशन किया तो उसको लगते हैं आने में 5-6 साल लगते हैं फ्रूटिंग आने के लिए। तो वो लगा कि कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो नेचुरली इजीली मिल जाता है। जो प्लांट्स की नीड है उसी का ही प्लांटेशन करना है। और जिसमें ज़्यादा अपना प्रैक्टिस का फोकस है या जिस पे प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है, जैसे कि अभी किसी को क्षार सूत्र बनाने हैं, तो क्षार सूत्र के लिए क्या लगता है, तो क्षार सूत्र के लिए स्नोई लगता है, हरिद्रा लगता है, अपमार्ग का प्लांटेशन होना चाहिए, अर्क चाहिए। तो ये इसका ही प्लांटेशन करना, और उसके ही ये प्लांटेशन करने के बाद उसके क्षार सूत्र बना के ये खुद का ब्रांड कर सकते हैं। ये फार्म की हर्बल फार्मिंग की एक स्ट्रेंथ है कि खुद का ब्रांड बना सकते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, जो जिसकी नीड है या जिसमें काम करना है उसके अकॉर्डिंगली।
और ये इसमें थोड़ा दिक्कत है कि मार्केट लिंकेज भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है अभी दिखने में अच्छा लगता है, पर मैं ये हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर माल ऐसे ही पड़ा रहा या वो गया नहीं मेडिसिन, तो थोड़ा वो ऐसे होना नहीं चाहिए। इसीलिए मार्केट के आगे की भी लिंकेज होनी चाहिए और उतना रूट पे भी वर्क होना चाहिए, ग्राउंड वर्क भी उतना होना चाहिए, दोनों साथ साथ में भी होने चाहिए। एक पैर जो है वो गांव में होना चाहिए और दूसरा पैर जो वो सिटी में होना चाहिए या मार्केटिंग के लिए होना चाहिए। दोनों अगर मैनेज किया जाए तो ये उसको कुछ लिमिट ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। और सर्टिफिकेशन लगते हैं ऑर्गेनिक के या आयुष के, जीएमपी फार्मेसी के लिए। और सस्टेनेबल होना चाहिए, ये कैसे कि 2 साल 3 साल कर सकते और बाद में छोड़ सकते, तो ये ऐसे नहीं। इसकी सिस्टम, इसके एसओपी तैयार करके आगे जो कुछ ज़रूरी है या जिसकी नीड है तो उसके एसओपी तैयार करके ये प्लांटेशन करना चाहिए। अगर हाँ, तो ये फार्म की बात हो गई, पर जिनके पास अभी फार्म नहीं है पर उनके पास टेरेस तो है, बालकनी है, तो वो यहाँ वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, तो उसमें एलोवेरा है, अपराजिता है, गुडुची है, वासा है, जिंजर, टर्मेरिक, तुलसी, नागवेली, ब्राह्मी, अश्वगंधा, ऐसे अलग अलग हर्ब जो कि क्षुप वर्ग या जो कि रनर्स है तो वो लगा सकते हैं। अभी ब्राह्मी लगाया तो ब्राह्मी और अच्छा दोनों भी इसमें लगा, शंख पुष्पी लगा सकते हैं। तो सुवर्ण प्राशन के लिए जो कुछ मेडिसिन लगते हैं रॉ, तो वो अपने खुद के टेरेस पे लगा सकते हैं। तो जिससे कि कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी फिनिश प्रोडक्ट की, और उससे बेनिफिट होगा और टेरेस भी काम आएगा। अभी हमारा जो विश्व भविष्य की जो नाम जो क्यों लिया, क्योंकि वो पूरे होल यूनिवर्स की मेडिसिन है। और दूसरा सिनोनिम है कि विश्व भविष्य, ये फार्म में जो एक्टिविटी चलती है हमारी, बिंदास होके हर हमको यार खूंटी पे टांग दूंगा, थोड़ा उधार ये जिंजर का मैं प्लांटेशन है। इत्मीनान तुमसे ही मांग लूंगा है, सीखा मैंने यार जो तुमने सिखाया रे, दमदार ये नुस्खा 45 डिग्री यार सेल्सियस में मैंने किया हुआ काम है आजमाया पूरा। रे। ये बाद में बहुत अच्छा लगता है रेनी सीजन में। ये फोटोग्राफी, मेरी एक इच्छा थी कि फार्म जो हो, जब मैं इंटर्नशिप में था कि फार्म का ड्रोन से मैं वीडियोस लूंगा, तब तो पैसे नहीं थे, पर ये मैंने अभी एक जो है मैं वो करते जा रहा हूँ अभी आगे। ये फार्म का पूरा, ये हमारी टीम है पूरी। ये ऑनलाइन देखने को बहुत थोड़ा ये अच्छा लगता है, पर इसके लिए टीम वर्क कि अगर किसी को आगे करना है तो आप फार्म में विजिट भी कर सकते हो सीखने के लिए। 1-2 दिन भी आप आए तो ये थोड़ा सा आपको आसान जाएगा। इट जिंजर का प्लांट है, प्लॉट है। ज़्यादा वीडियोस क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि हर्बल फार्मिंग जो है ये ऐसे डायरेक्टली नहीं सिखा सकते, इसीलिए एक तो फार्म में ही या वीडियोस फोटोज के माध्यम से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग पैशन प्रो से हुई थी, तो अभी ये टाटा सफारी में चल रही है। वहाँ से पुणे में जब मैं पीजी में था, वहाँ से बाइक पे लाना, वो ट्रैवल्स पॉइंट में रखना, उसमें ट्रैवल से संभाजी नगर लाना, संभाजी नगर से ऑटो करके गांव में लाना और वहाँ पे प्लांटेशन करना। तो अभी ये बहुत आसान हो गया अभी। ये फार्म स्टार्टिंग जो की थी हमने फार्म से की थी, ये ब्रांच है अलग अलग, ये संभाजी नगर की और एक फुलंब्री की है, और एक अभी तीसरी भी स्टार्ट की है हमने लासू स्टेशन में। तुझा तू सहारा तुडावा वाट धगधगता श्वास आता विहेभान पेटू दे पडू दे पाऊल पुढं संधिकाट पाया खाली लाख येळा येऊ दे
और ये अभी पिछले ये जनवरी में ही हमने विश्व गुरु संवाद फर्स्ट टाइम ही संभाजीनगर में एक सेमिनार अरेंज किया था। तो लगभग उसमें 1000 के आसपास स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर आए थे आयुर्वेदा के। तो Hello friends, so most welcome to Vishwaguru Samvad 21. So in this video I am sharing glimpse of key learnings and experiences from the day. So let's begin. उसमें धन्वंतरी यज्ञ प्रैक्टिकली हमने फार्म में कैसे लगाया है। तो हमने फार्म में एक इंडेक्स तैयार की है कि प्लांट्स रो तैयार की है। तो इंडेक्स में ये बताया कि कौन सा प्लांट कहाँ पे, उसमें कोडिंग की है, जो कि हमें मुझे सर ने पाटनकर सर ने आइडिया दी थी कि ये टाइप में आगे काम करो। तो उन्होंने जो कुछ बताया था तो हमने इम्प्लीमेंट किया है फार्म में। अभी तो आशा है कि सर जल्दी ये देखने के लिए आएंगे फार्म में और आपकी पूरी प्राचीन संहिता गुरुकुल की टीम आएगी। ये भस्मीकरण, औषधि निर्माण यानी प्लांटेशन से लेके औषधिकरण तक ये पूरा 2 दिन में हमने दिखाया था वहाँ पे। और अभी राजाश्रय जो कि मराठवाड़ा रीजन के 50 एग्रीकल्चरल ऑफिसर और उसमें कुछ सुपर क्लास ऑफिसर थे कि जिनसे हर फार्मिंग और उसके रिलेटेड जो प्रोसेसिंग यूनिट रहे थे उसके लिए सब्सिडीज ये उनकी ये जो है ऑर्गेनाइजेशन वो देती है गवर्नमेंट की। तो वो उन्होंने फार्म में प्रोग्राम रखा था कि हर्बल फार्मिंग कैसे करती थी। उसके लिए 50 से ज़्यादा एग्रीकल्चरल ऑफिसर फार्म में आए थे। तो उन्होंने बोला है कि तुम्हें कुछ सब्सिडीज या कुछ प्लांटेशन ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट चाहिए। लगभग उनका 3 CR का एक प्रोजेक्ट है, उसमें 90% सब्सिडीज है और लोन भी इजीली मिल जाता है ऊपर का जो है। तो उन्होंने फॉलो लिया उल्टा कि तुम्हारा कहाँ तक आया है डॉक्यूमेंटेशन, जो उन्होंने जो बोला था कि तुमने ये डॉक्यूमेंट रेडी किए है क्या। नहीं तो हम यहाँ से अप्रोच किए डायरेक्टली तो कोई रिप्लाई नहीं देता अच्छे से या भगा देते हैं। तो वैसे हमें प्रॉब्लम फेस नहीं किया क्योंकि वो हमारा बेस वर्क उतना अच्छा हुआ। और ये दिलीप कुमार सर है, अंबुजा इंस्टीट्यूट ऑफ, ये कोची से आए थे। Dear doctors, I'm in a very exciting place. Dr. Madhav and Dr. Manoj Gaikwad, known as Gaikwad brothers, they are doing a wonderful job. Okay, because they are trusting in the true Ayurveda. So time They're just trying to practice the true Ayurveda, which is the classical Ayurveda, which we are learning in the academy. But we don't use the medicines promptly. We are not getting a platform and opportunities to act on. But these guys, they have already made hard work. They already made especially cultivating also. I'm already appreciating these brothers, Gaikwad brothers in Maharashtra, Sambhajinagar, for their great work doing as a mission for the origins of Ayurveda. सोशल वर्क त्यासोबत म्हणजे अलग अलग हम हेल्थ कैंप लेते हैं और प्लांटेशन का कुछ जहाँ पे प्लांटेशन के लिए सैपलिंग हम सप्लाई करते हैं। ये सोशल मीडिया के चैनल से कृषि वैद्य माधव पेज से, इंस्टाग्राम पे वैद्य गायकवाड़ ब्रदर्स फेसबुक पे, और मनोज का भाई का जो है वो वैद्य मनोज गायकवाड़। ये प्रोडक्ट है, उसके साथ एक फार्म नीमा के नासिक के वैद्य आए थे। लगभग अभी विश्व भैषज फार्म में 3000 से ज़्यादा वैद्यों और स्टूडेंट ने विजिट किया है पिछले 2 साल में। जय धन्वंतरी, डॉक्टर वैभव कीर्ती चंद्रकांत दातरंगे। वनस्पतींची आवड आज घेऊन आलेली आहे फुलंब्री तालुक्यातील पाल गावाच्या विश्व भेषज फार्मसीमध्ये। वैद्य मनोज गायकवाड वंदनीय हे फार्म एका उद्देशाने बनवलेलं आहे, वाढवलेलं आहे, ते म्हणजे आयुर्वेदात उल्लेखित औषधी वनस्पतींची लागवड आणि संवर्धन करण्यासाठी। जवळपास 270 वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतींची रोपांचे जतन इथे करतायत।
विद्यार्थ्यांना वैद्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठीची ही नर्सरी फक्त ज्ञान देण्यापुरती मर्यादित न राहता याच्यातून व्यावसायिक पातळीवरचा आयुर्वेदाची प्रगती घडण्यासाठी आणि फ्रेशली सेल्फ मेड स्वतः बनवलेली ताज्या वनस्पतींच्या द्रव्यांचा वापर करून निर्माण केलेली औषधींचा सरांचा प्रकल्प आणि उपक्रम हा केवळ आजच्या पिढीसाठी नाही तर हा भविष्याचा एक पाया आहे जिथे हे जतन संगोपन पुढील अनेक पिढ्यांसाठी उपयुक्त आणि मार्गदर्शक ठरणार आहे. धन्यवाद. इसमें है कि पेशेंट का भी जो फ्लो हुआ है हमारे फार्म की वजह से, जो कि जो पेशेंट अटैच हो गए वो देखते हैं कि इन्होंने खुद के फार्म में मेडिसिन उगाए और उसके मेडिसिन बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल है उससे मेडिसिन बनाते हैं। तो उसी वजह से क्लिनिक के भी पेशेंट बहुत यानी जल्दी बढ़ गए और उनको ट्रस्ट भी मिल जाता है और रिजल्ट भी मिलता है। यहाँ पर मेरी मुलाकात वैद्य मनोज सर से हुई और उन्होंने मुझ पर पंचकर्म के आधार पर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट। अभी हमने उरन रोपक ऑयल एक बनाया था तो उससे सोराइसिस के पेशेंट बहुत अच्छे से ट्रीट हो गए। वो मान उसमें कुछ इंटरनल मेडिसिन भी थे, तो सोराइसिस के पेशेंट तो या सोराइसिस का हॉस्पिटल आयुर्वेदा का हॉस्पिटल है, ऐसे नाम से जाना जा रहा है अभी विश्व वैश्य हॉस्पिटल। खुद के खेत में उन्होंने 300 प्रकार की वनस्पतियां लगाई है और जिसका इस्तेमाल करके वो खुद की ऑल ओवर इंडिया सभी जगह से खुद पेशेंट को उसका इस्तेमाल करके उस पेशेंट को अच्छा रिलीफ मिलता है और जिसका सबसे अच्छा अनुभव मुझे मिला है डॉक्टर ने। मैं इस फील्ड में आने वाले सब डॉक्टरों से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि इसी तरह से अगर अच्छे खुद के खेत में अगर औषधियां बनाई तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उस पेशेंट तक जाता है और वो करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव। ये फार्म का लास्ट हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं है। ये जो जेसीबी का मैंने पहले वीडियो दिखाया था वो 2.5 साल के बाद का वीडियो है ये। और अभी उस पे वहाँ पे अभी सेल्फ डिपेंडेंट इकोसिस्टम यानी विश्व आयुर्ग्राम का कंसेप्ट हम कर रहे हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल, वहाँ पे मेडिसिन, वहाँ पे वेजिटेबल्स सभी एक ही जगह पे, पूरा कंट्रोल अपना है। थैंक यू। यस माधव, ये सुवर्ण प्राशन के रिजल्ट है। excellent Madhav, so good to see this, so good to have you as a guest. मैं अभी हरी सर भी बात करना चाहते हैं। हरी सर को भी मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। जस्ट अ मिनट सर प्लीज, हरी सर प्लीज। यस माधव, मम प्रिय माधवः बहु उत्तमः। खूप सुंदर प्रेझेंटेशन झालं, खूपच छान आणि खूप उत्तम पद्धतीने मांडणी। मला तुझं कष्ट आणि काम तर पहिल्यापासून माहीतच आहे, पण आजची मांडणी आणि अभ्यासपूर्ण प्रेझेंटेशन, त्यातले फोटोज व्हिडिओज विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयाच्या ग्रुपनुसार समजेल अशा गोष्टी, त्याच्यातलं फायनान्शियल व्हॅल्यू एडिशन, ओके। आणि तुझा मुलगा तर खूपच गोड आहे, तो ट्रिप मध्ये नेहमी माझ्या बरोबरच असतो खेळायला, तर त्याचंही प्रेझेंटेशन मी खूप छान वाटलं, आवडलं। सो ओव्हरऑल गुड, कीप इट अप, ओके। आयुर्वेद शास्त्रालाच एकूण या पद्धतीची गरज आहे आता। सगळ्यांनीच खूप चांगल्या पद्धतीने या क्षेत्रात काम केलं पाहिजे आणि तुम्ही तर झपाटलेली लोक आहात। मनापासून ते जनिस्थळी मनी काष्ठी पाषाणी हृदयी आयुर्वेद समजून सगळ्या वैद्यांकडून शिकून घेऊन जे शास्त्रासाठी गरजेचं आहे ते तिथे वापरतायत। रिअली फीलिंग प्राऊड ऑफ यू, खूप छान वाटलं। बेस्ट लक फॉर युअर ऑल फ्युचर। Yes, just
Yes, thank you so much, sir. Your blessing is very very important for all the student. और मैं तो कहूँगा कि माधव के विषय में तो गुरुबल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है. So proud to have alumni like माधव इन प्राचीन संहिता गुरुकुल. और मैं ये आपसे मतलब सर से भी विनती करता हूँ और माधव जी को भी बताता हूँ कि ये SIP की जो इस साल की टीम है, उनको मैं जून में विजिट के लिए लेके आऊंगा. ओके, तो अराउंड 12 स्टुडंट्स अँड प्राचीन संहिता. माधव सगळेच एवढे आम्ही मोठी टीम हो सर. व्हिजिट करतो. एक्झॅक्टली. नाही सर, तुम्ही आणि मॅम तर नक्कीच यावंच लागेल आता तेव्हा विश्वगुरु संवादच्या वेळेस नाही झालं पण. हो, तेव्हा बाहेर होतो, पण यावेळी नक्की येईल. आता बघू, एक रशियाची व्हिजिट आहे मध्ये, हो ते हो फक्त प्लॅनिंग बघून तुला टायमिंग कळवतो. हो हो. मोस्ट प्रोबॅबली हो. 11th of the June हम्म, असेल असं वाटतंय. सो लेट सी, विल डेफिनेटली गो ॲट युअर फार्म. आणि खूप छान वाटलं आज. एक्सलंट सेशन अँड एक्सलंट इन्स्पिरेशन. थँक्यू सो मच फॉर बिईंग हिअर. एवढं छान गाईड केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. हे लेक्चर रेकॉर्ड सुद्धा झालेलं आहे, त्यामुळे हे लेक्चर सगळं युट्यूबवरती सुद्धा मी अपलोड करतो आहे, गुरुकुलच्या पेजवरती आणि कायरोजच्या पेजवरती. जस्ट नीड युअर परमिशन फॉर दॅट. Yes. आणि खूप खूप थँक्यू एवढ्या शॉर्ट नोटीसवरती गुरुकुलसाठी, मदर इन्स्टिट्यूटसाठी काहीतरी केलं तुम्ही. खूप खूप थँक्यू. आणि खूप एक्सलंट व्हिडिओज अँड फोटोज अँड डॉक्युमेंटेशन होतं. अगदी सीड्स पासून ते त्याच्या फ्रूट पर्यंत एवढं छान डॉक्युमेंटेशन केलं. खूपच एक्सलंट. आणि आज फारच छान वाटलं की इतकं छान तू प्रेझेंट केलं आणि एवढं छान ते सगळ्यांना वाटलं. आता माझ्यासमोर स्टुडंट बसले, त्यांचं सुद्धा रिॲक्शन मी बघतोय. तर भृंगराज आणि हे सगळं पाहून खूप छान वाटलं. आणि मला तुझा सारिवाचा किस्सा तेवढा तू मला वाटतं सांगितला नाही. यातलं काही सांगता येईल का? किंवा शेवटचा पॉइंट म्हणून अनंताचा कल्टिवेशनचं काय सुरू आहे सध्या? नाही, अनंत कल्टिवेशन कडू सरांनी केलेलं आहे ऍक्च्युली. आमच्या शेतामध्ये ट्राय केलं होतं, पण ते तेवढं प्रॉपरली येत नाहीये. मी अगोदरच बोललो ना, ज्या एरियात ज्या गोष्टी येतात ना, किंवा बरोबर. आमची एक दुसरं शेत आहे जिथे की मुरमाची जमीन आहे, तर तिथे आम्ही ट्राय करणार आहोत ते पुढे लवकरच. बरोबर. व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस, आणि मस्तच. प्रत्येकाने ज्या रिजन मध्ये ज्या गोष्टी. येस सर. लाईव्ह फीडबॅक घ्या ना. हो, मुलांचे लाईव्ह फीडबॅक. ओके, आय गॉट अनिया हिअर. अनियाने छान इंट्रोडक्शन करून दिले होते. अनिया प्लीज, कॅन यू फीडबॅक देशील तुझं तिथे? ओके, अनम्यूट युअर सेल्फ अँड यू कॅन स्टार्ट. त्याच्यावरूनच. हां, श्रेया, यू कॅन डू इट. ओके, जस्ट अ मिनिट. Hello. यश, अनिया अँड भैरव, प्लीज. सर, खूप इन्स्पायरिंग होतं आजचं लेक्चर. ऍक्च्युली मी फर्स्टच इयरची स्टुडंट आहे आता. मी जस्ट आयुर्वेद बघते, एक्सप्लोअर करते सगळं. बट सर, तुमचं जे स्टार्टअप आहे किंवा जे फार्मिंग आहे, आयुर्वेद रिलेटेड जी भावना आहे, त्याला ग्रो करायची इच्छा आहे सर. खूप इन्स्पायरिंग आहे हे. आणि तुमचं फार्म एकंदर बघता, म्हणजे ऑनलाईन बघताना सुद्धा इतकं प्रसन्न वाटलं, इतकं छान वाटलं. सिस्टमॅटिक मॅनेज, प्लस त्याचं आधीचे त्याचे मागची मॅनेजमेंट, त्याच्या पुढची मॅनेजमेंट, फायनान्शियल असू दे, कशी असू दे. तर नक्कीच आवडेल सर तुमच्या फार्मला व्हिजिट करायला. थँक्यू सो मच आणि आजच्या लेक्चरसाठी. हॅलो सर, मी भैरव आहे, सेकंड इयरलाच आहे. तर इन्स्पायरिंग वाटलं. तुमच्याबद्दल आधी ऐकलं होतं, बट आज कळालं तुमचं वर्क म्हणजे मोस्टली आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरे कसे ग्रो होतात आणि त्याचं म्हणजे रिटर्न्स वगैरे कसं भेटतं, त्याला आपण कसं मेडिसिन म्हणजे फॉर्म्युलेशन्स मध्ये यूज करू शकतो. म्हणजे एक इन्स्पायरिंग, म्हणजे एक असं आपलं म्हणजे जर फार्म वगैरे असेल तर आपण करू शकतो ह्या गोष्टी. त्याबद्दल पण एक आयडिया भेटली सर. म्हणजे इन्स्पायरिंग तर होतच आणि कॉन्फिडन्स पण म्हणजे एक येऊ शकतो की बाबा आपण असं पण आयुर्वेदाला ऍज अ वे म्हणून बघू शकतो. म्हणून थँक्यू सर. आणि गेस्ट लेक्चर ऑर्गनाईज केल्याबद्दल सरांचं पण थँक्यू आणि तुम्हाला पण थँक्यू सर. येस, जयवंत सर, कोटकर सर, यू आर देअर. जर तुम्ही बोलू शकत असाल 2 मिनिट तर इट विल बी व्हेरी हेल्पफुल. जयवंत सर पण अशा खूप वेगवेगळ्या गोष्टी करत असतात. डॉक्टर जयवंत कोटकर.
हॅलो एव्हरीवन. Yes, sir. Yes, you're audible. हा सर, एकदम एक्सपायरिंग आणि एक्साइटिंग लेक्चर बघायला मिळालं. कृषी आयुर्वेद हे टॉपिक बघितल्यापासूनच मी एकदम एक्साइटेड होतो की अरे काय बघायला मिळेल, काय शिकायला मिळेल. अतिशय सुंदर लेक्चर झालं सरांचं. म्हणजे खूपच डेडिकेशन आहे या विषयामध्ये की स्वतःच्या शेतीतून त्यांनी एवढं मोठं फार्म उभं केलं आणि त्याला आयुर्वेदाची जोड दिली ते आपल्या क्लिनिक बरोबर. आणि त्याचं आपण काय म्हणू शकू की कमर्शियल टच पण त्याला तो तसा ते प्रकारे दिला. अतिशय सुंदर आहे सर. मलाही नक्कीच एकदा भेट द्यायला नक्कीच आवडेल. येस, तुमच्यापासून मला वाटतं जवळ पण आहे आणि जयवंत सर पण खूप म्हणजे ज्येष्ठ प्रॅक्टिशनर आहेत आणि अशा वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये ते ट्राय करत असतात. ही इज ऑल्सो इन द फूड इंडस्ट्री, बरंच काय काय करत असतात, त्यामुळे त्यांची फीडबॅक खूप महत्वाची आहे. थँक्यू. आज मी एक शेतकरी म्हणून ऍज अ पार्टिसिपेट झालो होतो आणि मला एक नवीन कल्पना मिळाली सर की आपल्याकडे असणाऱ्या शेतीला आपण आयुर्वेदाची जोड देऊ शकतो. येस येस, परफेक्ट. अगदी व्हेरी इंटरेस्टिंग. पासून टोमॅटो पासून. नक्कीच नक्कीच नक्कीच. खूप छान, मस्त. थँक्यू सर. थँक्यू सर. येस, लास्ट फीडबॅक एक घेऊया. गोव्यातून डॉक्टर श्रेया इज देअर. श्रेया, आर यू अवेलेबल देअर? इफ यू कॅन. हॅलो सर. हॅलो. येस सर, खूप छान वाटलं. म्हणजे वेगळा पर्स्पेक्टिव्ह भेटला. म्हणजे जे आम्ही बघत होतो आधीपासून, इनफॅक्ट पुण्याला आल्यापासूनच मला वेगळे वेगळे असे पर्स्पेक्टिव्ह भेटतच गेलेत. पण तुमचं आता हे सगळे व्हिडिओज ज्याप्रमाणे तुम्ही तुम्हाला म्हणजे सगळं जर्नी तुम्ही एक्सप्लेन केली तर खूप इन्स्पायरिंग आहे ते. आणि थँक्यू सो मच सर तुमचा पूर्ण जर्नी शेअर केल्याबद्दल. थँक्यू. थँक्यू. सो लास्ट फीडबॅक समृद्धी देसाई, लास्ट SIP स्टूडेंट, last one. Hello, yes sir. Yes, Samruddhi, please. So good afternoon. Myself Samruddhi Desai. मैं final year की student हूँ and the thing is it's very inspiring कि आप इतना large scale में सब कर रहे हो and utilizing it for मतलब खुद के patients के लिए और इसके रिजल्ट जैसे अपने गुरुवार्य बोलते हैं कि शास्त्र सेवा ही ईश्वर सेवा रहती है. तो it's very very inspiring. Thank you so much. Yes, okay. So that speaks for itself. How was the lecture? Okay. Thank you so much, Madhav. Thank you so much for sharing. गायकवाड सर एक मिनिट. Please. Yes. राही मावशी माझ्या जवळूनच एक साधारण 20 किलोमीटरवर राहतात. अरे वा, जवळच आहे मग सर. तुम्ही येऊ खूप शकता. क्लोज आहेत. खूप क्लोज आहेत माझ्या. तर काही म्हणजे तुम्हाला काही ऑन हे असेल पाहिजे असेल तर मी ती मदत करू शकतो. येस नक्कीच. क्या बात आहे. तुमचं अकोलेमध्ये आहे का सर की संगमनेर? हो, मी भंडारदरा राहते प्रॉपर. भंडारदरा. ओके. हा. माझ्यापासून 20 किलोमीटरवर राही मावशी राहतात. येस, ग्रेट. मस्त. This all is family, Prachin Sanhita Gurukul family, and everyone is happy to help every other one. Yes, thank you so much, and definitely आपण जून मध्ये विश्वभेषज फार्मची विजिट प्लॅन करूयात. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. ओके सर. थँक्यू सो मच. ओके. Okay, chalo. So this week's alumni lecture is right now over. Let's meet for next alumni lecture. I want to give you a surprise right now. The next alumni lecture is on Thursday, and that lecture is of Vaidya Rajesh Thakkar sir. Okay, so Rajesh Thakkar sir अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं next lecture के लिए. वो है next Thursday. So मैं तो बोलूंगा अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो क्योंकि वो लेक्चर भी बड़ा क्या बोलते हैं उसे, स्टॉर्मी होगा. So I hope everyone will be present on that day also. तो अगले गुरुवार 4 जून को राजेश ठक्कर सर का सेशन एल्यूमिनाई के ही इसमें होगा और उसके लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ. लेट्स मीट ऑन द 4th of June. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच वैद्य माधव गायकवाड फॉर हैविंग एज अ गेस्ट स्पीकर. थैंक यू सो मच हरीश सर फॉर गिविंग अस पॉइंट टू प्रूव in our life. Thank you all the students for being here. That's why we are organizing this session. Thank you so much everyone. Let's meet on the 4th of June and maybe on the 11th of June at the Vishwaveshaj Farm. Thank you so much.